बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is the fourth period of the mathematics. In the last lecture, I have completed exercise 2D, and today we solve the exercise 2E. Question number 1, part E, open page number 75. Using the elimination method, solve each of following pairs of simultaneous linear equation. Question number 1, part E, and we solve this question by using the elimination method. Elimination means finish to something, means eliminate to something. Here we have the two variables x and y. Both variables are unknown and we cannot find the both unknown variables simultaneously. So first of all you will have to eliminate the one variable, then you will find the value of the other variable. So I am solve repeating this equation. 3x plus y equal to 5. This is equation 1. X plus y equal to 3. This is equation 2. Okay, first of all you will check the coefficients of the both variables. The coefficient of the first variable in equation 1 is 3 and the coefficient of the first variable in equation 2 is not mentioned here. It means here is 1. So अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे x वेरिएबल को क्या मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ. सो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके चेक कर रही हूँ कि क्या मैं इसे एलिमिनेट कर सकती हूँ. 3 इन इक्वेशन 1 इधर जो है मेरे पास 3 टाइम्स x है और इधर मेरे पास 1 टाइम x है. सो आप यहाँ पे अगर 3 में से 1 को माइनस करोगे तो रिमेनिंग 2x बचता है. तो मीन्स ये सब्ट्रैक्शन करके एलिमिनेट नहीं हो रहा. नाउ चेक द अब एडिशन करके चेक करते हैं. 3 प्लस 1 4x हो जाएगा. सो यहाँ पे मेरे पास x एलिमिनेट नहीं हो रहा. नाउ चेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 2. There is the no any number mentioned here. You can take the 1, means इधर क्या है 1. So the absolute value of the coefficient of the y variable in both equation are the same. ठीक. So to eliminate the variable you must remember the two things. The first thing is coefficient must be same and the sign must be opposite. So यहाँ तो मेरे पास coefficient तो same हो गया, but अब मैंने check करना है क्या मेरे पास जो sign है क्या वो opposite है. coefficient same हो गया but sign यहाँ पे opposite नहीं है. जब आपके पास sign opposite नहीं होगा तो आपने क्या करना है, तो same है यहाँ पे sign. जब sign अपोजिट नहीं है मीन्स सेम है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. जब आपके पास साइन क्या होगा, सेम होगा. लेट्स सपोज अगर इधर मेरे पास माइनस होता तो साइन अपोजिट हो गया तो आप फिर क्या करते, एडिशन करते. ये चीज़ आपने याद रखनी है. जब मेरे पास आप जिस वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर रहे हो तो वहाँ पे दो चीज़ें सेम होनी चाहिए. एक तो कोफिशिएंट आपका सेम होना चाहिए, सेकंड इज साइन मस्ट बी अपोजिट. बट यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं है. जब साइन अपोजिट नहीं होता तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे. सो यू विल राइट द लेफ्ट टर्म ऑफ द both equation. The left term of the equation 1 is 3x plus y minus the left term of the equation 2 is x plus y equal to, now you will write the right side on both equation. The right side of the equation 1 is 5 minus the right side of the equation 2 is 3. ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे. 3x plus y, now minus 1 सॉरी ये है माइनस, इधर
कोई नंबर मेंशन नहीं तो आप यहाँ ले सकते हो, here is 1. So -1 is multiplied by each term in the bracket. आप इस 1 को 1 by 1 x और y से मल्टीप्लाई करोगे. So -1 into x is -1x and minus plus minus 1 into y is 1y equal to 5 is subtracted from 3 is 2. So अब आपने क्या करना है, सेम वेरिएबल से सॉल्व करोगे. ठीक, वी कैन नॉट सॉल्व द 3x प्लस वाई बिकॉज द बोथ वेरिएबल्स आर द डिफरेंट. सो x माइनस किया जाएगा x वेरिएबल से, 3x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1x इज 2x. सो यहाँ मेरे पास, अब अगर आप देखो तो मेरे पास जो y वेरिएबल है वो अपोजिट साइन हो गए. यहाँ मेरे पास सेम साइन था, जब मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मेरे पास जो साइन था वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया. इधर कोफिशिएंट आप क्या ले सकते हो, 1. सो नो नीड टू राइट द कोफिशिएंट 1, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया. फॉर द सब्ट्रैक्शन साइन मस्ट बी अपोजिट. सो y यहाँ पे एलिमिनेट हो गया आपके पास, इक्वल टू 2. 2 is the coefficient of the x. Coefficient is multiplied by the variable. So यहाँ ऑपरेशन फंक्शन 2 का क्या है मेरे पास वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लीकेशन. When they shift on the right side, the operation function will be changed in division. So यहाँ पे ये आके डिवाइड हो गया. 2 into 2 is 1. So you will get the value of x is 1. मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए y को एलिमिनेट किया. सो व्हाट शुड आई डू द फॉर द वैल्यू ऑफ y. सो हमने अब वैल्यू ऑफ y के लिए क्या करना है, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 और 2. आपने इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक इक्वेशन में इसको आप पुट कर दोगे x की वैल्यू को. सो आई एम पुटिंग इन दैट इक्वेशन, आई एम पुटिंग in that equation from which the answer get easily. So putting x in equation 2 because 2 is easier than the equation 1. so मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँगी क्योंकि यहाँ से मेरे पास स्टेप्स को कम फॉलो करना पड़ेगा. हम मैथमेटिक्स में उन्हीं इक्वेशंस को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारे पास आंसर आसानी से हम फाइंड कर सके. सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 सेलेक्ट की है फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y. सो x इज रिप्लेस फ्रॉम 1. यहाँ मैं x को रिप्लेस कर दूंगी 1 से क्योंकि x किसके बराबर है मेरे पास 1 प्लस y. और ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आप चाहो तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो. प्लस y इक्वल टू 3. सो यहाँ मैंने x की जगह 1 पुट किया प्लस y इक्वल टू 3. अब 1 ये कांस्टेंट नंबर से ही आप सॉल्व करोगे. सो 1 आपके पास शिफ्ट होगा ऑन द राइट साइड. द ऑपरेशन फंक्शन इज इन नेगेटिव. यहाँ पे इसका ऑपरेशन फंक्शन जो है इधर पॉजिटिव था, नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन. सो यहाँ पॉजिटिव साइन है, जब आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 इज 2. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज 2. तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, solution set, first we will write the value of x, then you will write the value of y. ये आपके पास वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये वो पॉइंट है जब आप इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 को जब आप इन दो इक्वेशन में पुट करोगे तो ये पॉइंट जो है एक दूसरे को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा. यानी यहाँ पे आप जब x की जगह 1 और 2 की y की जगह जब आप 2 पुट करोगे तो 5 इक्वल टू 5, यहाँ जब पुट करोगे तो 3 इक्वल टू 3. यानी ये साइमल्टेनियस को ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को एक साथ जो है सेटिस्फाई कर देगा. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट E. And question number 1 part K you will solve by yourself as the same method of the part E, and make sure you will solve by yourself, then you check by the teacher content solution. Now start the question number 10 part E, sorry part A. Two upon x plus y equal to 1 upon 2x plus y, 3x plus 4y equal to 9. Okay.
I am reading the question and listen carefully. Using either the elimination or the substitution method, solve each of the following simultaneous linear equation. You can solve by using either the elimination method or the substitution method. You can select any one method for solving this question and repeat these equation. 2 upon x plus y, 1 upon 2x plus 1 upon 2x plus y. I will solve this question by using the substitution method because अभी हम यहाँ पे elimination method एक सीख चुके हैं. अब यहाँ पे हम substitution method solve करेंगे. So give the head of the substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपनी कॉपी के हेड पे भी एक हेड दे दोगे ताकि आपको दोनों मेथड के डिफरेंस रहे कि कौन सा मेथड एलिमिनेशन है और कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है. नाउ first of all we rearrange this equation as the journal form of the linear equation because the both side left और right side are in the fraction form. So आपने इसे क्या करना है, linear form में convert करना है. कैसे करेंगे, जो इसके fractions हैं, अगर आप fractions के जो denominator हैं, ये मेरे पास है denominator, इसको आप cross में shift करोगे. जब ये cross में shift होगा तो आप अगर देखो तो इसका जो denominators हैं, इसका जो ऑपरेशन फंक्शन है वो डिवाइड है. जब आप इसे राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ से ये जो 2 है मेरे पास, ये डिनोमिनेटर जब इधर आएगा तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन दे शिफ्ट ऑन द राइट साइड द ऑपरेशन फंक्शन विल बी चेंज इन मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर को मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए. सो अब आपने क्या करना है, 2 is written in the outside the bracket is multiplied by each term in the bracket. 2 is 4x plus 2y into 2y equal to. So in the substitution method we first rearrange the one equation to express the one variable in the other वेरिएबल. सो अभी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं. यहाँ पे ये 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई. अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वेरिएबल से आप इसे सॉल्व करोगे. ठीक है, हम 4x को 2y में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट. सो आपने क्या करना है, इन सेम वेरिएबल्स को अगर आप देखो तो एक मेरे पास राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे है और एक वेरिएबल मेरे पास राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. सो आपने क्या करना है, सेम वेरिएबल को रीअरेंज कर लेना है. 4x माइनस 1x प्लस 2y माइनस 1y. So all term has been shifted on the left side. You will get the right side 0. ठीक. So अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 4x minus 1x is 3x. I am solve this side. Four x is subtracted from 1x is the 3x plus 2y is subtracted from 1y is 1y equal to 0. This is equation 1. This equation is converted in the linear form. ठीक है, ये आपके पास linear form बन गई. And the second equation is 3x plus 4y equal to 9. This is equation 2. हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे. सो इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी फर्स्ट रीअरेंज द वन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द वन वेरिएबल इन द अदर इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल. सो यहाँ पे मेरे पास क्या करना होगा, मुझे आपके पास दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन है. दो इक्वेशन में से आप किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करोगे, ले लोगे और उस इक्वेशन से भी आपने दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, उस इक्वेशन के इक्वल ले लेना है. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इक्वेशन 1. मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ले रही हूँ.
अब मैंने क्या करना है, x और y दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को अपनी पूरी इक्वेशन के इक्वल ले लेना है। सो यहाँ पे जो वेरिएबल आसानी से इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा आपने उसी को उसके बराबर ले लेना है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं y के बराबर ले लूँ अगर इक्वेशन के, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और कोफिशिएंट 1 को आप लिखो या नहीं लिखते, मोस्टली हम नहीं लिखते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे साइन मेरे पास पॉजिटिव में, तो आप जिस वेरिएबल को भी इक्वल ले रहे हो उसको हम जो है पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम y को मूव नहीं करवाएंगे, मैं अपनी इस इक्वेशन को अरेंज कर रही हूँ y के। सो y मेरे पास लेफ्ट साइड पे ही है, इक्वल टू आपने इसको मूव करवाना है। मैं इस वेरिएबल को राइट साइड पे जब मूव करवाऊंगी यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव साइन है, सो नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन। आप जब इसे वहाँ शिफ्ट करोगी तो ऑपरेशन फंक्शन विल बी चेंज इन नेगेटिव साइन। सो यहाँ पे ये -3x हो जाएगा। सो rearrange the equation 1 to express y in term of x। यहाँ पे मैंने जो है इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर दी है, यानी मैंने अपने y वेरिएबल के बराबर ले लिया है। y की वैल्यू तो आ गई बट इन टर्म ऑफ x है, मीन्स अभी मेरे पास y की जो वैल्यू है वो पूरे होल नंबर में नहीं आई है। सो अभी यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले तो आप इसे नेम दे दो, इक्वेशन 1 2 एंड दिस इक्वेशन इज 3। y को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म ऑफ x। सो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इस y को। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लाके रख देना, यानी कोई दूसरी चीज़ प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना। किसी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आप रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लेके y को एक्सप्रेस किया, देन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। सो आप यहाँ स्टेप मेंशन करोगे, सब्स्टिट्यूट y in equation 3, sorry in equation 2, 3x plus 4, y is replaced from -3x। y replace होगा किससे, from -3x से, equal to 9। 3x प्लस माइनस, आपके पास मैथमेटिक्स रूल प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, मीन्स आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। 4 इंटू 3 इज 12x इक्वल टू 9। इधर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मीन्स 3 और 12 को जब आप सॉल्व करोगे इस पे जो फंक्शन अप्लाई किया जाएगा वो नेगेटिव का किया जाएगा। 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इज 9x, सो ग्रेटर वैल्यू इज इन द नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव, equal to 9। -9 is the coefficient of the x, coefficient is multiplied with the variable, so the -9 जो है यहाँ जो ऑपरेशन फंक्शन है -9 का वो क्या है, मल्टीप्लाई। सो आई विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड, द ऑपरेशन फंक्शन इज इन द डिवीजन। 9 इंटू 9 इज 1, x इक्वल टू 1। यहाँ मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। सो फ्रैक्शन जो आपके पास है, इन फ्रैक्शन की जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन होंगे, न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव मीन्स द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द -1। सो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू के लिए क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन 1 ली थी, इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया टू एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, देन आई सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया मुझे x की वैल्यू मिल गई। सो नाउ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 2 और 3, बट आई एम पुटिंग इन दैट इक्वेशन फ्रॉम विच वी गेट द आंसर इजली। सो यहाँ आप मेंशन करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x -1 इन इक्वेशन 3 because it easier to obtain the value of y by putting the value of x in that equation instead of 1 and 2। अगर मैं यहाँ पे 1 की x की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करोगे। अगर मैं 1 और 2 सेलेक्ट करती हूँ, आप ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट यहाँ पे हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो हम उसी इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हम अपने आंसर को आसानी से फाइंड कर सकें। सो पुटिंग
x is equal to -1 in equation 3, y equal to -3x is replaced from -1 equal to y equal to माइनस माइनस, आपके पास ये रूल है माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 3 into 1 is 3. You will get the value of y is 3. Solution set. First you will write the value of x is -1, then you will write the value of y is 3. Okay, now I am going to start the exercise 2f. In exercise 2f, here we have been given the question in the statement form. Exercise 2f. Now start the question number 4. स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ हमें सवाल जो है क्वेश्चन गिवन दिए हैं, हमने क्वेश्चन खुद रीड करके हमने इक्वेशंस बनानी है. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, पेज नंबर 81. ओपन द पेज नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 4. 8 kg of potatoes and the 5 kg of carrot cost the $28. Whereas the 2 kg of potatoes and the 3 kgs of carrot cost the $11.2. Find the cost of 1 kg of each item. Here we have been given the combined cost of the potatoes and the carrot, and we don't know the cost of the 1 kg of potatoes and the कैरेट. सो यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल्स गिवन नहीं है, 1 kg वेरिएबल्स गिवन नहीं है. सो आई हैव टू अज्यूम the 1 kg of variable 1 kg of carrot and potatoes in the variable form. Let's suppose potatoes be the x and carrot be the y. Means the 1 kg of the potatoes is the x dollar and the 1 kg of कैरेट इज द वाई डॉलर. यहाँ मैंने वेरिएबल्स की फॉर्म में सपोज कर लिया बिकॉज वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ द 1 kg पोटाटोज एंड द 1 kg ऑफ कैरेट. सो यहाँ जो मुझे कंबाइंड कॉस्ट दी हुई है, कंबाइंड कॉस्ट मुझे जो 2 प्राइस दिए हुए थे $28 एंड द $11.2, ये मुझे कंबाइंड कॉस्ट गिवन है. सो यहाँ मैं इक्वेशन बना रही हूँ $28. ये मुझे किसके कंबाइन कॉस्ट दिया हुआ है, पोटाटोस और कैरेट की कंबाइन है. तो पोटाटोस मैंने x वेरिएबल से शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x कंबाइन है. तो यहाँ पे कैरेट के जो वेरिएबल यूज किया है y, उसको भी ऐड कर लोगे क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास कंबाइन कॉस्ट है. सो ये तो 1 वेरिएबल मैंने शो किया हुआ है, जो x y को ज्यूम किया हुआ है. इसका मतलब है 1 kg ऑफ द पोटाटोस, y इज 1 kg ऑफ द कैरेट. सो यहाँ पे तो ये 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप देखोगे कितने kg मुझे गिवन है, 8 kg ऑफ पोटाटोस. तो पोटाटोस x है, कितने kg हैं, तो आप इसके साथ लिख लोगे 8 एंड द कैरेट इज द 5 kg. तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा 5 kg. यानी जब आप 8 kg ऑफ पोटाटोस प्लस द 5 kg ऑफ कैरेट को आपने जब खरीदा, टोटल कॉस्ट जो बनी वो मेरे पास बनी $28. सो दिस इज इक्वेशन 1. एंड द सेकेंड कंबाइंड कॉस्ट जो मुझे दिया हुआ है $11.2. ये भी कंबाइंड कॉस्ट है किसका, पोटाटोस और कैरेट का. सो पोटाटोस क्या है x प्लस कैरेट इज y. सो यहाँ पे x और y तो 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ मुझे जो दिया हुआ है वेयर इज द 2 kgs ऑफ पोटाटोस एंड 3 kgs ऑफ द कैरेट. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 kg ऑफ potatoes and the 3 kg and the 3 kg of carrot. This is equation 2. Okay, we can solve this question either the elimination or the substitution method. Now I am solve this question by using the elimination method. So first of all, for the elimination method, in elimination method you check the coefficient and the sign. So coefficient must be same and the sign must be opposite. So check the coefficient of the first variable in equation 1. Here is 8 and in equation 2 here is 2. So coefficient तो same नहीं है. Now check the coefficient of the second variable in both equation. The coefficient of the second variable in equation 1 here is 5 and in second equation here is 3. So both coefficients in equation are different.
ना मैं 5 को 3 बना सकती हूँ और ना 3 को हम 5 बना सकते हैं। आपने उस ही वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जिसे आप आसानी से एलिमिनेट कर सको। सो यहाँ पे मैं अगर 2 को 8 बना दूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो x है वो इजीली से एलिमिनेट हो जाएगा। सो कैसे मैं इसे 8 बना सकती हूँ? मल्टीप्लाई बाय 4। आपने इसे क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 8। सो यहाँ आप मेंशन करोगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, आपने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। अकॉर्डिंग टू रूल यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय द होल इक्वेशन। आपने होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। 4 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11.2। 4 इंटू 2 इज 8x plus 4 into 3 is 12y equal to 44.8. Equation 2 is converted in equation 3. So अब आपने क्या करना है? First of all you will check the coefficient of the both equation. Coefficient of the first variable in equation 1 8 and the coefficient of the third equation is 8. So the absolute value of the coefficient of the x variable in both equation are the same. Now you check the sign. So एलिमिनेट करने के लिए साइन क्या होना चाहिए? मस्ट बी अपोजिट। बट यहाँ भी साइन आपके पास क्या है? इन इक्वेशन 1 पॉजिटिव साइन एंड इक्वेशन 3 में भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव साइन। नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमारे पास है। सो जब आपके पास साइन सेम होगा, जिस वेरिएबल को भी आप एलिमिनेट कर रहे हो उस वेरिएबल का साइन अगर आपके पास सेम होगा तो आपने क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन करनी होगी उन इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन 1। मैं 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करी? 3 को 1 से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपके पास 3 इन इक्वेशन 3 में ग्रेटर वैल्यू यूज हुई है एज कम्पेयर टू इन इक्वेशन 1। सो यू विल राइट द लेफ्ट साइड ऑन बोथ इक्वेशन। द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 3 इज 8x plus 12y minus the left side of the equation 1 is 8x plus 5y equal to the right side of the equation 3 44 minus left side of the equation 3 8x plus 5y equal to the right side of the equation 3 44.8. Right side of equation 1 is 28. x plus 12 आप अभी इसको ऐसे ही लिखोगे। माइनस इसके साथ आप 1 लगा सकते हो। सो -1 इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इन द ब्रैकेट। -1 into 8x is -8x, minus plus minus 1 into 5y is -5y equal to 44.8 is subtracted from 28 is 16.8. Now अब आपने क्या करना है? अब आप चेक करोगे कि 8x यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव। सो एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है। सो यहाँ पे फॉर द सब्ट्रैक्शन द साइन मस्ट बी अपोजिट। सो यहाँ साइन मेरे पास अपोजिट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ आपके पास क्या होगा? 12 y वेरिएबल। आप y वेरिएबल से ही सॉल्व करोगे तो 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज 7y equal to 16.8. 7 is the coefficient of the y variable. Coefficient is multiply with the variable, so is the operation function of the 7 is the multiply. Now we will shift on the right side. The operation function will be changed in division. 16.8 is divided by 7 is the 2.4. The value of y you will get the 2.4. ठीक, यहाँ मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पे आप फाइंड करेंगे।
For finding the value of y, now I am putting the value of, for finding the value of x, now I am putting the value of y in equation, either equation 1, 2 or 3, but I am putting the value of y in equation 2. मैंने इक्वेशन 2 क्यों सेलेक्ट की है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखो कोफिशिएंट यहाँ पे एज कम्पेयर टू इक्वेशन 1 और 3 यहाँ पे स्मॉल है, सो आपने उन्हीं वेरिएबल इक्वेशन को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपके पास आसानी से आंसर आप फाइंड आउट कर सको. सो आई एम पुटिंग द इक्वेशन y इन इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y is replaced from the 2.4 equal to 11.2. 2x plus 3 is multiplied by 2.4 is 7.4 equal to 11.2. 2x इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर से सॉल्व होगा. सो आप 7 + 4 को शिफ्ट करोगे ऑन द राइट साइड, 11.2 माइनस होगा, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो 7.4 आपके पास किस में हो जाएगा, नेगेटिव साइन में. आप इसे माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 4. 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स वेरिएबल. कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, जब आप इसे राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड. 2 1 इज 2, 2 इज 4. सो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x की 2. सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, यू विल राइट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, देन यू विल राइट द वैल्यू ऑफ y इज 2.4. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. टू एक्स माइनस 7, x प्लस वाई माइनस 9, y प्लस 5. ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. द फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है मीन्स इसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इट्स साइड्स आर साइड्स एज द इंडिकेटेड. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल. आपको यहाँ पे मुझे साइड्स इंडिकेट की हुई है बट इन द इक्वेशन फॉर्म. आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको फाइंड करना है, इनकी साइड्स को क्या करना है, फाइंड करेंगे. सो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, सॉल्व. 2x minus 7 equal to 0. This equation is 1. X plus y minus 9 equal to 0. This is equation 2. And the third equation is y plus 5 equal to 0. If we find the value of x and y, we can also get the sides of the triangle. So first of all, हमने यहाँ पे find करना है x and y की value को. So if you look the equation number 3, from the equation 3, we find the value of y. So taking equation 3, now I am taking the equation 3 for finding the value of y. Y plus 5 equal to 0. अगर मैं 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी. y इक्वल टू 5 इज शिफ्ट ऑन द राइट साइड, सो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ मेरे पास y की वैल्यू आ गई. अब मैंने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 2. अगर आप इसे 2 की इक्वेशन में पुट करते हो तो आप क्या कौन सी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे. सो पुटिंग y इन इक्वेशन in equation 2, so x plus y is replaced minus 5 minus 9 equal to 0. X plus minus 5 minus 9 equal to 0. x ऐसे लिखोगे माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, यानी आपने 5 और 9 पर जो फंक्शन, यानी इसको सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन आप इस पे अप्लाई करोगे वो होगा प्लस का. माइनस माइनस प्लस, आप इसे प्लस कर लो, आंसर आपका आएगा 14. ग्रेटर वैल्यू इज इन द नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव. x minus 14 equal to 0. For finding the value of x, minus 14 will have to shift on the
राइट साइड। तो यहाँ आपके पास ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज़ 40। आपने यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड x की वैल्यू भी। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो हमें ट्राइंगल की साइड्स भी फाइंड हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू को, मैंने y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू से x वैल्यू आपने फाइंड की, फिर उसको आप जब पुट करोगे तो आपको साइड्स यहाँ पे पता चल जाएगी। सो x को आप पुट करोगे इन इक्वेशन 1, now I am putting the value of x in equation 1. To x is replaced from 14 minus 7 equal to 0. 2 into 14 is 28 minus 7 equal to 0. 28 subtracted from 7 is 21 centimeter. The sides of the triangles is 21. So I am going to wind up the over here, and you will write the homework in your diary. I am giving you the homework. Two pencil and two pens cost $50, whereas two pencils and the two pens, here is the 4 pens, and the 2 pens cost $30. Find the cost of ईच आइटम्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 पेंसिल्स और 4 पेन्स आपको गिवन है जिनके $50 है। कंबाइन कॉस्ट है ये, ठीक है, और कंबाइन कॉस्ट एक और 30 दिए हुए जो कि 2 पेंसिल्स और 4 पेन्स का। आपने 1 पेंसिल और 1 पेन के प्राइस यहाँ पे बताने हैं। सो your work must be completed on the 15 August. Okay. Copy will be collected after the 6-week videos, and your work must be completed till then. Allah Hafiz.